मैडम की आवाज नहीं आ रही, मैडम म्यूट है। प्रीति जी आप म्यूट हैं, आप पहले अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर बताएं। पहले अनम्यूट करिए तब। मैंने तो कर लिया सर। मैडम दूसरे उससे बोल रही हैं सर। I am immensely thankful to our Honorable Principal Ma'am, Dr. Kamla Chandar, who is also the patron of this program, and Dr. Adarsh Pandey, President SRBS, who took initiative for this lecture series. On inaugural session, I am glad to share that more than 140 students from six different colleges have joined the group to be a participant of this series. And before starting the first session, it's time to unfold the day-wise schedule of our program. And there would be a theoretical session that to be taken up by our eminent speakers. And on day 1, Dr. Rajan Singh would take the session, followed by Dr. Pramod Kumar on day 2. The session would start at 11:30 a.m. daily and would end by 12:15. Similarly, Dr. Deepika Sani, Dr. Ahmed Parvez, Dr. Amit Vash, Dr. Shankar Mandal, and Dr. Adarsh Pandey would deliver the lecture respectively. It would start at 11:30 a.m. daily. Now, benefits of this lecture series. This lecture series would not only clear the concept of biological sciences, but also provide us an open platform for all of us to discuss and to share our queries, views, information, and knowledge. And it will be a great learning opportunity for all of us. So it's time to move further without taking much of your time. And for that, I would request our representative to introduce our eminent speakers and to take the session forward. Thank you. Thank you, ma'am. I am Nirupma Dalakoti. Good morning, everyone. It is indeed a great pleasure to welcome you all on this important event of invited lecture series on Biological Science 2020. I am pleased and honored to introduce our eminent speaker for today's session, Dr. Rajan Singh, Associate Professor at Bareilly College, Rohilkhand University. He is Principal Investigator of UGC Major Project in Plant Nematology Research. Dr. Singh is specialized in plant nematology and he has 20 years of teaching experience in zoology and 30 years of teaching experience in medical entrance examination. Dr. Singh has great research experience in crop protection for last 24 years. Along with teaching, he has great administrative, supervisory, directorial duties experience. Dr. Singh has set question papers for various colleges, university, CBSE, Public Service Commission of various states. He has visited more than 20 countries for academic purpose. Dr. Singh is pioneer and known to organize maximum number of conferences in Western Uttar Pradesh and attend more than 100 national and international conferences. He has published 25 research papers and 9 chapters in different books. At last, I would like to mention that till date, Dr. Singh has appeared in 10 radio talk and TV shows. I can't thank him enough for sparing his precious time with us out of his very busy schedule. Now I request sir to deliver his lecture on his topic, immunity, the ability to fight against disease. Sir, please. थैंक यू वेरी मच निरुपमा मैम, आपने तो बहुत कुछ ज़्यादा सा बता दिया। और मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगा जो इस लेक्चर सीरीज को आयोजित कर रहे हैं मित्र मेरे अतुल उप्रेती जी और SRBS सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर पांडे जी, कुछ मित्रगण, साथी और बहुत सारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स जो कि आप लोग मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं अपनी बातों को कुछ शेयर कर पाऊँ।
मेडिकल साइंस में या जूलॉजी की। तो ये जो करंट एरा इस समय चल रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बार रिपीट हुई हैं। आए दिनों हम लोग रोज वेबिनार्स का आयोजन कर रहे हैं और अटेंड भी कर रहे हैं। तो लौट फेर करके सारी दुनिया हमारी कोविड, एनवायरनमेंट चेंजेस, इम्यूनिटी, इन सभी पर सीमित रह गई है। तो मैंने भी सोचा कि लाओ थोड़ी सी इम्यूनिटी की बात हम लोग भी कर लेते हैं, उसके कुछ साइंटिफिक पहलू और कुछ जो उसके कॉमन मैन के लिए जरूरी फैक्ट्स हैं उनको मैं शेयर करना चाहता हूँ। एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. Okay, thank you so much. So I want to share my screen now. क्या कोई परमिशन देगा मुझे? हेलो डॉक्टर अतुल जी, परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट शेयर करिए तो स्क्रीन अपनी। डॉक्टर साहब मैं इसमें जैसे जा रहा हूँ प्रेजेंट नाउ। ओके, हाँ हाँ, तो फिर दो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, योर एंटायर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन कर दिया मैंने। हाँ, और स्क्रीन पे ओपन कर लो तो आप अपना जो भी आपको करना है उसको स्क्रीन पर आप ओपन कर लीजिए पहले। हाँ, वो तो खुला हुआ है मेरा पावर पॉइंट। तो ये आ रहा है कांट शेयर योर स्क्रीन, यू मस्ट ग्रांट परमिशन इन ऑर्डर टू शेयर योर स्क्रीन। ये आपको ही परमिशन, ऊपर देखिए कहीं परमिशन आ रहा होगा, उसी पे आपको ओके करना है, ये आपको ही करना है। अच्छा, नीचे तो डिसमिस ऑप्शन आ रहा है, मैं देखता हूँ, एक सेकंड जस्ट हाँ वेट हाँ, करें इसके प्लीज। ऊपर पे हाँ आप ही करेंगे इसको, परमिट आप ही करते हैं, हालांकि वो सबसे मांगी जाती परमिशन, लेकिन वो आप सुन देते हैं इसको। और ऑप्शन में देखता हूँ मैं पूरे स्क्रीन। अच्छा, अब दो ही ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। तो ये जैसे ही प्रेजेंट स्क्रीन कर रहा हूँ तो नीचे डिसमिस का एक ऑप्शन आ रहा है, रिपोर्ट प्रॉब्लम, सेटिंग्स में जाके देखूं कुछ, स्पीकर, माइक्रोफोन, ऑडियो, वीडियो, जनरल। एंटायर स्क्रीन, आपके पास कहीं कोई परमिशन का ऑर्डर नहीं है? सर यहाँ पर तो नहीं है कोई। एक्चुअली गूगल मीट पर जरा मेरा पहला दूसरा एक्सपीरियंस है शेयर करने का। तो इसमें जो प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन आ रहा है और व्हेन आई एम क्लिकिंग दिस, ये लैपटॉप के बीच में आएगा सर बन के, उसी में कहीं पर हाँ, परमिट लिखा होता है, वो डिसमिस वाला तो नीचे आता है, डिसमिस वाला ऑप्शन तो नीचे आता है और परमिट वाला बिल्कुल बीच में आता है सेंटर में। देखिए जैसे ही हम प्रेजेंट नाउ कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं कि योर एंटायर स्क्रीन और एक या विंडो। अब आई वांट टू शेयर माय एंटायर स्क्रीन। ओके, अब जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो कह रहा है कि कांट शेयर योर स्क्रीन, यू मस्ट ग्रांट परमिशन इन ऑर्डर टू शेयर योर स्क्रीन। फिर नीचे लिखा रहा है इसमें डिसमिस करें या तो इसको।
तो दूसरी विंडो करके देख लीजिए सर, और मैं इंटायर स्क्रीन नहीं हो रहा है तो। और स्पीकर सारा माइक्रोफोन ये भी सब ठीक है। हाँ जी सर। सर मैं ये कह रहा था, अच्छा, मैं विंडो करके देख लीजिएगा एक बार। विंडो करके भी देख लिया सर। अब विंडो नहीं करके सर, देख लिया, देखिए विंडो में भी सेम ऑप्शन आ रहा है। मैं दोबारा ज्वाइन करके देखूं? ये दोबारा ज्वाइन करके देखिए सर आप। मैं शेयर जरा करके प्लीज वेट करें सभी लोग। जी जी। हम्म। मेरे में तो स्टार्ट प्रेजेंटिंग आ जा रहा है, तुरंत हो जा रहा है स्टार्ट। और डॉक्टर साहब सेफ हैंड पे मैं ऐसा भी करूं कि आपको अपना पीपीटी व्हाट्सएप कर दूं? आदर्श सर को कर दीजिए सर, अच्छा ठीक है। उनके पास कंट्रोल है ना। 1% कुछ। हेलो मुझे भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप यहाँ पे प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करके योर एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करिए, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट होने लगेगी। हेलो मैं दोबारा से लॉगिन कर रहा हूं लैपटॉप पर। डॉक्टर साहब जी आने लगा, अब आने लगा आपका हल्का फुल्का। आइए डॉक्टर साहब। हाँ आ गए स्क्रीन आ आइए गया। अब। प्लीज हाँ प्लीज आप कंटिन्यू करिए। वैसे मैंने भेज दिया, अब आ गया है। जी जी आ गया। ओके। Okay. Am I audible and visible both? You are audible, clearly visible and clearly audible. You please continue, Doctor sir. चलिए थैंक यू सो मच सॉरी फॉर interruptions. So first of all, about the immunity we have to know what is health. Health is said to be a complete well-being in terms of physical, mental, social and reproductive. जैसे कि हम पहले भी और 11th-12th लेवल पर सारा पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जो सामाजिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है। हेल्थ को प्रभावित जो फैक्टर्स करते हैं दे मे बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे चारों तरफ मिलने वाले डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कुछ बीमारियां। चूंकि हमारा संबंध इम्यूनिटी से है तो हम केवल आज फोकस करेंगे खास तौर पर जो एक बड़ा फैक्टर है डिजीज। डिजीज को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, डिजीज में दो टर्म है ध्यान से देखा जाए तो, एक है डिस एंड सेकंड वन इज ईज। ईज मीन्स इजीनेस, डिस का मतलब डिस्टर्ब। तो जब हमारे शरीर की जो इजीनेस है, आराम है, आरामदायकता है हमारे शरीर की, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है देन वी से दैट वी आर हैविंग अ डिजीज। और जब ये डिसीज होती है तो फिर कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन सिस्टम अपना एडवर्सली
इन्फेक्टेड होता है और कुछ डिफरेंट साइन सिम्टम्स आते हैं, तब हम कहते हैं कि वी आर इल, मीन्स वी आर हैविंग ए डिजीज। बहुत मोटे तौर पर डिजीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। Infectious diseases are caused by different pathogens like bacteria, viruses, etc. और non-infectious disease जो है they are not transmitted by different pathogens or vectors, और they may be cancer, cardiac disorders, diabetes, etc. लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां non-infectious disease कहलाती है। पैथोजेंस की बात करें इन्फेक्शियस डिजीज में, तो आप जानते हैं कि पैथोजेंस जो हैं दे आर मोस्टली माइक्रोब्स, मींस ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय naked eyes. These may be bacteria, viruses, protozoans, fungi, different worms and some insects also causes different diseases. Here we focus for common viral diseases and their pathogens, as you are watching in the on the screen. Different viral diseases में चिकन पॉक्स वेरी कॉमन था, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, कोल्ड, फ्लू, मम्प्स, जिसमें जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं वो इन्फेक्टेड होती है कान के नीचे, येलो फीवर है, एड्स, रेबीज, हर्पीज, डेंगू, ये सारी की सारी बीमारियां डिफरेंट वायरसेस से कॉज होती हैं। मैं सीधे फोकस करता हूँ इम्यूनिटी पर। इम्यूनिटी को पढ़ने से पहले ये समझ लें कि जैसे आजकल कुछ जो करंट सिनेरियो चल रहा है कि इंडिया और चाइना में बहुत तनातनी हो रही है, तो हर देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उसके पास एक पूरी मिनिस्ट्री होती है, एक पूरा सिस्टम होता है। ऐसे ही जरा कल्पना करें कि आपका शरीर जो है ये एक कंट्री है, देश है, और इस शरीर में जो कंट्री है इसमें बहुत सारे प्रदेश है, स्टेट्स है ना, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। यानी राज्यों में भी फिर क्या होते हैं, जिले होते हैं, और फिर और ऐसे ही जाए तो फिर हमारी यूनिट जो आती है, जो इंडिविजुअल्स हैं, किसी भी देश के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो उसकी इकाई कहलाती है। ऐसे ही हमारी बॉडी जो अगर देश है तो हमारी सेल्स जो है दे आर द सिटीजन्स। हमें क्या करना है कि हमें अपने सिटीजन्स को बचाना है ना। हमें अपने सिटीजन्स को बचाने का मतलब है कि जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं उन्हें हमें बाहरी घुसपैठियों से, जो डिफरेंट इंट्रूडर्स हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, विच कैन कॉज डिफरेंट डिजीजेस, जो हमारे लिए फैटल हो सकते हैं, उन्हें हमें अपने शरीर में प्रवेश करने से रोकना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही कोई आतंकवादी आपके देश में घुसना चाहता है, तो जब कोई आतंकवादी किसी भी देश में घुसेगा तो भाई बहुत सारे डिफरेंट बॉर्डर्स होते हैं, लेवल्स होते हैं डिफेंस के। तो जैसे किसी भी देश का जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है वो उसका बॉर्डर होता है, बॉर्डर पे है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस लगे रहते हैं, आर्मी लगी रहती है कि वो किसी भी दूसरे बाहरी व्यक्ति को देश में घुसने नहीं देगा। तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर वहां से घुस भी गया मान लो, तो फिर स्टेट की जिम्मेदारी है कि जिस स्टेट में वो घुसा है वहां की स्टेट की पुलिस होती है, वो उसको पकड़े, और फिर उसको भी अगर वो क्रॉस कर जाता है तो फिर तीसरी जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो लोकल लेवल पर है, जहां पर कि कोई स्कूल में एंट्री करना चाहता है, किसी मंदिर मस्जिद पर कब्जा करना चाहता है, तो वहां पर अपने जो लोकल गार्ड्स होते हैं, है ना, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। और चौथा अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मान लो किसी आतंकवादी ने अटैक कर ही दिया तो फिर प्रिंसिपल, मौलवी या जो भी जहाँ पर संबंधित व्यक्ति है उसका फर्ज ये बनता है कि मेरे पर तो अटैक हो ही गया है लेकिन मैं दूसरे लोगों को बचाऊं। तो वो कुछ अलार्म बटन दबाएगा, फोन करेगा वगैरह। ये एक 4 लाइन सिस्टम है। बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा शरीर भी बिल्कुल इन्हीं बैरियर की तरह काम करता है कि उसमें पर्पज ये रहता है कि किसी भी तरीके से जीवाणु, कीटाणु है, जर्म्स है, वो हमारी बॉडी की सेल्स तक ना पहुंच पाए, और जगह जगह काम करता है। देखते हैं जरा इसी चीज को
आपकी समझ में आएगा, बच्चों को मैं समझता हूँ कि चीज़ें क्लियर होंगी। तो इम्यूनिटी जो है, इट इज़ द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। एक प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी में बीमारियों से, जीवाणुओं, कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये दो तरह की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब है कि जो इम्यूनिटी बाय बर्थ हमें प्राप्त होती है, जन्म से ही सभी को मिलती है। और ये जो इम्यूनिटी है, ये मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं बैरियर्स की जो कि हमें प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं, यानी हम बाहरी कीटाणुओं को, जीवाणुओं को, पैथोजेंस को आने से रोकेंगे, और वो होते हैं इन टर्म्स ऑफ बैरियर्स। देखते हैं कौन कौन से बैरियर होते हैं। तो ये 4 बैरियर्स हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। सबसे है पहला फिजिकल बैरियर, सेकंड पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा सेल्यूलर बैरियर, और चौथे होंगे साइटोकाइन बैरियर। ये आप वैसे ही कल्पना करके चलें कि सबसे पहले बीएसएफ है, स्टेट की पुलिस है, फिर लोकल गार्ड्स है, और फिर खुद जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है उसकी जिम्मेदारी है, वो यहाँ पर हम साइटोकाइंस के रूप में देते हैं। जरा पहले फिजिकल बैरियर की बात करते हैं। फिजिकल बैरियर का मतलब है कि ये वो बॉर्डर है हमारे शरीर के जो कोशिश ये करते हैं कि हमारी बॉडी में जीवाणु कीटाणु जाए ही नहीं। आप जानते हैं कि माइक्रोब्स और ओमनी प्रेजेंट, वो तो सब जगह रहते हैं हमारे आसपास, हम कितना भी साफ सफाई रखें लेकिन फिर भी माइक्रोब्स चूंकि हमें दिखाई नहीं देते, तो वो तो बराबर बने रहते हैं। तो सबसे पहला जो फिजिकल बैरियर है वो है हमारी स्किन। स्किन की जो हमारी आउटरमोस्ट लेयर है, ये लेयर जो है डेड है ना, जो स्ट्रैटम लेयर है ये डेड लेयर है। हमने जानबूझ के इसके नीचे फिर लिविंग लेयर आती हैं। तो इस डेड लेयर के संपर्क में बहुत सारे माइक्रोब्स आते तो हैं, बट दे कैन नॉट एंटर एंड दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन द सरफेस। दूसरा, ध्यान से देखा जाए तो अब सब जगह स्किन नहीं है, कुछ हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं जिनके थ्रू माइक्रोब्स हमारी बॉडी में जा सकते हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, यूरिन करते हैं, जेनिटल ओपनिंग्स हैं। ये सारे प्रवेश द्वार ऐसे हैं, यहाँ से भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में जा सकते हैं। तो प्राकृतिक रूप से इन सारे ओपनिंग्स को या उनके जो ट्रैक्ट हैं, रास्ते हैं, उसमें हमने म्यूकस की कोटिंग की हुई है, जिससे कि वो म्यूकस से चिपक जाए जीवाणु कीटाणु और वो अंदर प्रवेश न कर पाए। उसमें नेजल हेयर्स और सीलिया भी अपना रोल प्ले करते हैं। जरा से धूल मिट्टी अगर हमारी नाक में जाने की कोशिश करती है तो आप देखते हैं किस तरह से स्नीजिंग होती है, और वो सारे हेयर्स जो है सीलिया रिफ्लेक्स के साथ चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं। तो ये पहले फिजिकल बैरियर हैं जो रोक रहे हैं कि किसी भी तरीके से जीवाणु कीटाणु हमारी बॉडी में न जाए। अब फिर आता है कि चलो इन बैरियर्स को क्रॉस कर भी लिया किसी माइक्रोब ने, कि हम खाना खा रहे थे, खाने का निवाला जो हमने खाया है उसमें दिस में भी पॉसिबल कि उसमें कुछ माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो, खराब खाना है, रखा हुआ पनीर है, फर्मेंटेड है, कुछ भी चीज़ खराब सी हो सकती है, और वो हाँ हमारे म्यूकस वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो फिर जब हम फूड को च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, तो उसमें लार मिक्स होती है। लार में क्या होते हैं कि ये लाइसोजाइम्स होते हैं, बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम्स होते हैं, ये उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो ये सेकंड बैरियर है कि अगर यहाँ से जा भी रहा है तो हमारे माउथ में जो सलेवा है वो किल करने की कोशिश करेगा, और माउथ में भी अगर सलेवा से बच गया तो फूड सबसे पहले कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक में आपको पता है कि HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो वहाँ पर बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा जो हमारी आईज हैं, दे आर द लिविंग टिश्यूज, और ये डायरेक्ट माइक्रोब्स और एयर के संपर्क में रहते हैं। तो हमारी आंखों में जो टीयर्स हैं, आंसू हैं, इनमें भी बेसिकली लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। प्राकृतिक रूप से हमारी स्किन खुद अपने आप को सेल्फ स्टरलाइज करती है। जब स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो पसीने में भी लाइसोजाइम्स एंजाइम होते हैं विच आर बैक्टीरियोसाइडल। तो आपने देखा कि पहला बैरियर अगर काम नहीं करेगा तो सेकंड बैरियर जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो एक्टिव होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हम उनको मार गिराएं और जर्म्स को आगे तक ना पहुंचने दें। अब थर्ड बैरियर आता है कि माइक्रोब्स ने दोनों बैरियर को क्रॉस करके हमारे स्टमक में भी वो बच गया, और वो हमारे सीधे ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। इंटेस्टाइन की दीवारों को पेनिट्रेट करके वो सीधे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड वेसल्स में आ जाता है। तो वहां पर फिर तीसरे बैरियर काम करते हैं, ये कहलाते हैं सेल्यूलर बैरियर। यानी कुछ खास तरह की कोशिकाएं हमने अपने शरीर में पाली हुई हैं जो बाहर से आए हुए जो हमारे इंट्रूडर्स हैं,
जर्म्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनको किल करेंगे, जिसमें कि आपकी सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट WBC होते हैं। और जो उसके अलावा कुछ खास तरह की WBC जैसे मोनोसाइट्स हैं, KT सेल्स होती, किलर सेल्स होती हैं, और हमारे टिश्यूज के अंदर कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी स्किन में सब रहता है, उसमें खास तरह की फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, भक्षण कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम मैक्रोफेग्स कहते हैं। ये सारी सेल्स सब मिलकर के कोशिश करेंगे कि अगर पैथोजन आ भी गया है तो उसको खा लिया जाए, उसको मार दिया जाए, उसको गिरा दिया जाए। तो 3 बैरियर को क्रॉस कर भी लिया। जस्ट इमेजिन कि इन तीनों बैरियर्स को क्रॉस करके कोई पैथोजन किसी ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन की सेल्स के अंदर वो पहुंच गया और वहां पर जाके वो मल्टीप्लाई करने लगा। जस्ट इमेजिन कि एक वायरस जो है हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं उन टिश्यूज में जाकर के वो संक्रमित कर रहा है। अब वो चौथा वाला बैरियर काम आएगा, जिसमें कि मैंने बताया था कि किसी स्कूल, कॉलेज, बैंक पर अटैक हो भी जाता है तो वहाँ के मैनेजर, प्रिंसिपल के पास एक पैनिक बटन होता है। वो बटन दबा के बाहर पब्लिक को, पुलिस में ये बताने की कोशिश करता है कि मेरे ऊपर अटैक हो गया है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। तो ये चौथे बैरियर हमारे इम्यून सिस्टम में होते हैं, इन्हें साइटोकाइन बैरियर्स कहते हैं, जिसमें ये देखा गया है कि जैसे कुछ जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर वायरस एंट्री कर गया है और वो मर रही हैं या उनके अंदर वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स खास तरह के केमिकल्स, प्रोटीन्स को रिलीज करती हैं, जिन्हें हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं, या और भी कई सारी इसकी कैटेगरी होती है। ये इंटरफेरॉन्स, ये प्रोटीन जो हैं अपनी न्यूबरिंग सेल्स को, अपनी पड़ोसी कोशिकाओं को बताती हैं कि आप होशियार हो जाओ, हम पर तो अटैक हो गया। तो ये चौथे बैरियर कहलाते हैं। ऐसे ही हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में मास्ट सेल्स होती हैं और एक खास WBC हम लोगों में जो बेसोफिल्स हैं, ये भी कुछ केमिकल्स को रिलीज करती हैं, जैसे हिस्टामिन्स हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देते हैं जिससे कि माइक्रोब्स को किल किया जा सके, उनसे बचा जा सके। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी थी। इतने सारे के सारे कंपोनेंट हमें प्राकृतिक रूप से सभी को, बच्चों को, बड़ों को जन्म से ही हमें मिलते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से माइक्रोब से बच सकते हैं। तो ये पहला कंपोनेंट इसका खत्म होता है इन्नेट इम्यूनिटी का। दूसरा आता है फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जैसे कि नाम से लग रहा है, ये प्रतिरोधक क्षमता वो है जिसे हम प्राप्त करते हैं, जन्म के बाद ये हमें प्राप्त होती है, और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब है कि जैसे जैसे जो माइक्रोब्स, पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा, हम उसके खिलाफ अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसकी सबसे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, यानी हमारे इस इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये माइक्रोब कब आया था, कैसा था ये, तो इसको याद रखते हैं और कुछ खास मेमोरी सेल्स अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसको भी हम अपनी सुविधा से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहते हैं AMI और दूसरी कहलाती है CMI। AMI को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जा रहा है, जो कि नाम से लग रहा है कि इसमें कुछ एंटीबॉडीज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, या इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमरल का मतलब है ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब बॉडी फ्लूइड्स, जो हमारे शरीर में डिफरेंट तरल है, ब्लड है, लिम्फ है, और जो आंखों में विट्रस ह्यूमर है, एंडोलिम्फ है कान में, ब्रेन में CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। इस सारे के सारे फ्लूइड्स को कलेक्टिवली हम ह्यूमर कहते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, चूंकि इन द्रवों में पाई जाती हैं, तो इसीलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कुछ खास तरह की कोशिकाओं से हम काम लेंगे, और ये भी जो डिफरेंट पैथोजेंस हैं उनको मारने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। तो इस पर ध्यान रखना है आपको कि कुछ खास तरह की एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारे फ्लूइड में पाई जाती हैं, द्रवों में पाई जाती हैं। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर स्किप करूंगा क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ कि हम लोगों ने खूब पढ़ा हुआ रहता है कि व्हाट आर एंटीजेंस एंड व्हाट आर एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर ये है कि एंटीजेंस आर फॉरेन मॉलिक्यूल्स,
कोई भी बाहरी चीज, जीवाणु, कीटाणु, प्रोटीन्स, किसी भी तरीके का वेनम, जहर जो आपके शरीर को स्वीकार नहीं है, वो कहलाता है एंटीजन। और उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ खास तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स आपके शरीर में बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई होगी, जो जीता वही सिकंदर। एंटीजन अगर जीतते हैं तो बीमारी होके रहेगी, और एंटीबॉडी हमारे जीतते हैं तो वो पैथोजन को हम मार गिराएंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जरा देखते हैं कि जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या है, कैसे बने हुए होते हैं। ध्यान रखें, ये खास तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ग्लोबुलिन इनकी कैटेगरी है प्रोटीन्स की। तो किसी भी एंटीबॉडी को हम IG से रिप्रेजेंट करते हैं। IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडीज कुल प्लाज्मा प्रोटीन के लगभग 20% होते हैं, और एंटीबॉडीज को बनाने की जिम्मेदारी जो है वो लिम्फोसाइट के पास होती है। दो तरह की लिम्फोसाइट आपने पढ़ी हुई होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, और वो बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज बनाती हैं उनका भी हमने नाम दे दिया खास, उन्हें कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स एक तरह की बी लिम्फोसाइट है which are depicted for the production of antibody। एक सामान्य एंटीबॉडी में ध्यान से देखा जाए तो ये एक वाई की शेप की होती है, और उसमें 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन होती हैं। तो इसको हम H2L2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी संरचना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कॉमन ये एंटीबॉडी है। ये इसकी आर्म्स कहलाती हैं, और ये वाई की शेप में इसका ये स्टेम हो गया नीचे। ध्यान से देखें तो जो इसकी टिप है इसे फॉर्क कहते हैं, फॉर्क चिमटे की तरह दिख रहा है, और यही वो जगह है जिसकी चिमटे से ही क्या करेंगे, एंटीजन को पकड़ते हैं, है ना, एंटीजन। इसीलिए ये जो साइट को हम क्या करें, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं, और ये वेरिएबल रीजन है। हर एंटीबॉडी में अलग अलग होगा, क्योंकि एंटीजन अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, फंगस है, वायरसेस हैं। तो डिफरेंट टाइप के एंटीजन के लिए डिफरेंट एंटीबॉडीज होंगी। ये जो नीचे का पोर्शन होता है ये सारा कांस्टेंट होता है। तो एक सामान्य एंटीबॉडी की रचना आपने देखी है। मेनली जो एंटीबॉडीज हमारे फ्रूट्स में मिलती हैं वो 5 तरह की होती हैं, IgD-E-M-A-G। मैं बच्चों को याद रखने के लिए हमने इसका कोड बना लिया दिमाग। तो IgD, E, IgM, IgA और IgG। ये एंटीबॉडीज, इनकी संरचना पे आप ध्यान रखें कि ये कितने वाई की बनी हुई हैं, ये यहाँ पर एक्सप्लेन होता है। जिससे आप देख रहे हैं कि जो IgD है इसमें एक वाई होती है, IG में भी सिंगल वाई होती है। IgM लार्जेस्ट एंटीबॉडी कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर कितने 5 वाई होते हैं, 5 मोनोमर होते हैं। IgA में 2 वाई होते हैं, दो मोनोमर्स हैं, और IgG में भी सिंगल। हर एंटीबॉडी की अपनी विशेषता होती है। देखते हैं क्या क्या। जो IgG है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्ग एक्टिंग एंटीबॉडी है, यानी लंबे समय तक काम करती है। आकार में सबसे छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि ये प्लासेंटा को पास करके मदर से बच्चे के ब्लड में जा सकती है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो पास करती है मदर से बच्चे में। तो इसका IgG आप ध्यान रखें। ये मोस्ट अबंडेंट भी है, कुल एंटीबॉडीज का 80% तो IgG ही होती है। एंड दिस एंटीबॉडी इज वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगल इन्फेक्शन। IgM एंटीबॉडी जो है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, और ये किसी भी जहां पर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, ये सबसे पहले पहुंचती है। IgA एंटीबॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे हम कहते हैं सिक्रेटरी एंटीबॉडी। सिक्रेटरी एंटीबॉडी इसलिए कहते हैं कि जो बॉडी के डिफरेंट सिक्रीशंस हैं उनके अंदर ये बॉडी एंटीबॉडी पाई जाती है। सिक्रीशंस का मतलब जैसे कि जो हमारी लार है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लार में कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो IgA होगा। जो मदर का मिल्क है वो भी एक तरीके का सिक्रीशन है, उसमें भी IgA होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि IgA इज फाउंड इन टीयर्स
स्वेट, सलाइवा एंड कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम मदर का मिल्क है, जो कहा जाता है कि भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। तो इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि उस मदर के मिल्क में, कोलोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होती है जो बच्चे की इम्यूनिटी को एनहांस करती है। 3 तरह की एंटीबॉडीज के बाद चौथी एंटीबॉडी IgD है, और ये एंटीबॉडी बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स को इस बात की सूचना देती है कि हमारे शरीर में कितने एंटीबॉडीज की जरूरत है। अगर कम पड़ती हैं तो ये जाके सूचना देती है कि भाई आप और एंटीबॉडीज बनवाइए, तो इसके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। IgE एंटीबॉडी जो है, इसका रोल एलर्जिक रिएक्शंस में होता है, और इसीलिए याद रखने के लिए कह देता हूं मैं बच्चों से कि एलर्जी में ई काम आती है। हालांकि एलर्जी की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, लेकिन IgE इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस। एक बहुत मजेदार फैक्ट आप देखिए अपने सिस्टम को और हमारे शरीर की कोशिकाओं की कार्य क्षमताओं को आप देखें। लिखा है कि बी लिम्फोसाइट्स, ये जो बी सेल्स हैं, गेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्लाज्मा सेल। मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि बी लिम्फोसाइट चेंज हो जाती है किसमें, प्लाज्मा सेल्स में, और यही प्लाज्मा सेल्स 2000 एंटीबॉडीज पर सेकंड की रफ्तार से एक प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और एक एंटीबॉडी की संरचना आपने देखी थी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थी, उसमें सल्फाइड लिंकेज था, एंटीजन बाइंडिंग साइट थी। तो क्या मशीनरी है, क्या प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्या सारा DNA अनकोड होता होगा, कितना फास्ट मैकेनिज्म है। 2000 एंटीबॉडीज पर सेकंड की रफ्तार से उसके सेल से निकलती हैं। अब बारी आती है कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में काम कैसे करते हैं, कि इनकी जो लड़ाई होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है, ये एक तरीका है उसमें एग्लूटिनेशन। आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे किसी गांव में, शहर में हमें ये पता पड़ जाए कि भाई कोई ये आतंकवादी है ना, या ये घुसपैठिया है, ये बंदा सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ के लोग, वहाँ के सिटीजन्स तुरंत क्या करें, उसको पकड़ लें, सब तरफ से जकड़ लें, उसको, उसके हाथ पैर बांध दें, तो वो इनफेक्टिव हो जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही क्या होता है, एक तरीका हमारे बॉडी में एंटीबॉडी ऐसे ही करती हैं कि जैसे ही उन्हें कोई एंटीजन दिखाई देता है, कोई भी बाहरी चीज दिखाई देती है, तो बहुत सारे एंटीबॉडी उस पर चिपक जाते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं एग्लूटिनेशन। तो लिखा है कि एंटीबॉडीज बाइंड्स टू द एंटीजन टू प्रोड्यूस लार्ज इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विच आर हार्मलेस। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा एक तरीका कहलाता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन भी बहुत मजेदार फैक्ट होता है। इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो डिफरेंट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, CBI है, CID है, या और भी इस तरीके के होते हैं, ऐसे ही एक LIU होती है, लोकल इंक्वायरी यूनिट होती है, जो शहरों में बिना वर्दी के कुछ जासूस घूमते रहते हैं सरकार की तरफ से। वो इस बात का पता रखते हैं कि कहाँ लड़ाई हो सकती है, कौन क्या कह रहा है, और फिर वो उस पर नजर बनाए रखते हैं। तो ऑप्सोनाइजेशन भी बिल्कुल एक ऐसा ही फिनोमेना है जिसमें एंटीबॉडीज घूमते रहते हैं और वो एंटीजन को पहचान लेते हैं कि ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, और एक उस एंटीजन पर जाकर के वो चिपक जाते हैं, यानी उस पर मार्क लगा दिया कि भाई ये चीज जो है हमारे यहाँ की नहीं, हमारी सोसाइटी का बंदा नहीं। फिर जब फेगोसाइटिक सेल्स आगे आ रही होती हैं, भक्षण कोशिकाएं, और वो भक्षण कोशिकाएं किसी एंटीजन को देखती हैं जिस पर कि वो मार्क लगा हुआ है, कोई एंटीबॉडी चिपी हुई है, वो समझ जाती है कि ये भाई लेबलिंग की हुई है, और वो उसको खा जाती है पका के। तो ये फिनोमेना कहलाता है ऑप्सोनाइजेशन। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम पैथोजन को मार्क लगाए दे रहे हैं, उस पर एक चिन्ह बना देते हैं जिससे कि ये पता पड़े हमारी फेगोसाइटिक सेल्स को कि ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। तीसरा तरीका आता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल लाइसिस कहते हैं। इसमें भी बहुत मजेदार होता है, जिससे आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो डिफरेंट ट्राइबल एरियाज हैं, दिखाते हैं कि किसी आदिवासी क्षेत्र में आप गलती से घुस गए तो वहाँ के लोग उलाला करते हुए आ जाते हैं और सारे भाले लेके मारने को दौड़ते हैं। इसमें भी एक बिल्कुल ऐसी तरीका है कि जब हमारे शरीर में कुछ पैथोजन चले जाते हैं
तो फिर एक अंतिम ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि हम उस पैथोजन को हम पंक्चर कर दें, उसको किल कर दें। अब किल करने के लिए वहां पर हमारे पास सुइयां भाले तो है नहीं, तो ये एक खास मैकेनिज्म होती है जिसमें हम कुछ खास एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं और वो एंजाइम्स उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को बस्ट कर देते हैं, जिससे कि सेल खत्म हो जाती है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो ये सेल वॉल को हमने रप्चर कर दिया, बस्ट कर दिया और इसको खत्म कर दिया। तो ये तीसरा तरीका है एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन का। एक हो गया एग्लूटिनेशन, जिसमें कि चिपक जाते हैं, दूसरा ऑप्सोनाइजेशन है और तीसरा कहलाता है सेल मीडिएटेड लाइसिस। ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है जिसपे आप समझने की कोशिश करें तो जैसे जब हमारे बॉडी पर कहीं कोई कांटा लगता है या कोई कील चुभ जाती है या हमें कोई इंसेक्ट बाइट करता है, मधुमक्खी या वास्प काटती है, तो उस जगह पर, उस एरिया पर आप फील करते हैं कि वहाँ पर काफ़ी जलन होती है, वो एरिया थोड़ी देर में लाल हो जाता है और वो वहाँ पर स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ये जरा डायग्राम यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, ये हमारी स्किन को दिखाया हुआ है और ये एक कांटा हमारी स्किन में चुभा है ना। जब कांटा हमारी स्किन में चुभेगा तो ये हमारी स्किन पंक्चर हो रही है यहाँ पर, और बाहर हवा में या जो भी ऑब्जेक्ट हमारे गड़ा है, कील है, लकड़ी है, कुछ भी है, इस पर ये पर्पल कलर के माइक्रोब्स आपको दिख रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स हैं, दे विल एंटर इनटू द बॉडी, ये हमारे शरीर में चले गए। अब जब ये शरीर में चले जाते हैं तो यहाँ पर रहा हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू के बीच में से पास होती है ये ब्लड कैपिलरी, दिख रही है आपको ब्लड कैपिलरी। तो जैसे ही बैक्टीरिया हमारे ब्लड कैपिलरी या स्किन या कनेक्टिव टिश्यू में पहुंचते हैं तो ये जो सेल आप देख रहे हैं, मास्ट सेल, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक सेल है। ये मास्ट सेल इस बैक्टीरिया को देखते ही तुरंत स्टिमुलेट हो जाती हैं और अपने अंदर से एक खास केमिकल छोड़ती हैं। इन केमिकल को कहते हैं हम हिस्टामिन। ये एक तरीके का वैसोडाइलेटर होता है। वैसोडाइलेटर का मतलब है कि ये ब्लड कैपिलरीज को डायलेट कर देते हैं, उनको चौड़ा बना देंगे। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो इसका जो डायलेशन बराबर होता जा रहा है। जैसे जैसे ब्लड कैपिलरी डायलेट होती है तो इसकी परमिएबिलिटी भी चेंज हो जाती है, पारगम्यता चेंज हो जाएगी। अभी तक इस ब्लड कैपिलरी में से ब्लड के कोई कंपोनेंट बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन अब जैसे ही इसकी परमिएबिलिटी चेंज हुई, हिस्टामिन की वजह से डायलेशन हो गया, तो अंदर से ब्लड कैपिलरीज के अंदर से कुछ WBC बाहर आ जाती है, फैगोसाइटिक WBC बाहर आ जाती है, मोनोसाइट्स वगैरह, और ये बाहर आकर के हमारे टिश्यू में छुपे हुए इन माइक्रोब्स को बराबर खा जाती है। तो इसीलिए वो एरिया जिस जगह कांटा लगा है या किसी हनीबी ने हमें काटा हुआ है तो वो हमें रेड दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है, क्योंकि वहाँ पर हम कौन सा केमिकल निकला हुआ है, हिस्टामिन निकला हुआ है। ऐसे में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उस इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करने के लिए जितनी भी मेडिसिन दी जाती हैं वो हमेशा एंटी हिस्टामिन होंगी। एंटी हिस्टामिन का मतलब है कि जो हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज करके उस सूजन को और जो लाल रेडनेस वहाँ पर है उसको कम करेगी। हालांकि ये सब जो काम हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ये बहुत जरूरी था इसीलिए हो रहा है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी मैंने बताई दो तरह की है। इनेट इम्यूनिटी जिसके 4 बैरियर थे, और दूसरी इम्यूनिटी थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसके 2 कंपोनेंट थे, एक थी AMI और दूसरी कहलाती है CMI। AMI को हमने पढ़ लिया कि कैसे इसमें एंटीबॉडीज काम करते हैं और किस तरीके से वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं जरूर से। अब जरा CMI की बात कर लेते हैं। CMI का मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में 2 प्रकार की कोशिकाएं हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा बनती हैं। एक कहलाती हैं B सेल्स, दूसरी कहलाती हैं T सेल्स। इन्हीं को लिम्फोसाइट भी कहते हैं, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इनका मैच्योरेशन कहाँ हुआ है। जरा B लिम्फोसाइट को देखें ध्यान से तो लिखा है कि B लिम्फोसाइट्स इनिशियली आर प्रोड्यूस्ड इन द यॉर्क सैक ऑफ द एम्ब्रियो। शुरू में एम्ब्रियो के यॉर्क सैक में ये बनती हैं, आफ्टरवर्ड इन लीवर एंड देन स्प्लीन। फिर बाद में लीवर बन जाता है तो लीवर में बनने लगती है, स्प्लीन में भी बनती हैं, और बाद में जब हड्डियां बन जाती हैं तो फिर ये हड्डियों के बोन मैरो में
बनती हैं या इनका मैचुरेशन होता है, इसलिए इन्हें बी लिम्फोसाइट कहते हैं, बी फॉर बोन मैरो। ये दो तरह की होती हैं, एक प्लाज्मा सेल और एक मेमोरी सेल। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि वो बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं उन्हें हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, और दूसरी होती हैं मेमोरी सेल्स। ये ही वो सेल्स हैं कि दी लिखा है कि आफ्टर फर्स्ट एनकाउंटर दी सेल्स मेमोराइज द नेचर ऑफ एंटीजन। ये फिर एंटीजन का ध्यान रखती हैं कि कौन सा आया था। ध्यान रखें, ये पढ़ाया जाता है कि, या ये कहा भी जाता है कि अगर हमें कोई बीमारी एक बार हो जाए तो कुछ बीमारी ऐसी है कि फिर वो दोबारा कभी नहीं होती। तो ये सब उनमें मेमोरी सेल्स का ही सारा खेल होता है, ये ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्शन, बट आपकी एक ही स्लाइड, पहली वाली स्लाइड दिख रही है। पहली वाली स्लाइड दिख रही है? हाँ, लगातार वही स्लाइड दिख रही है, तो आप इसको आगे बढ़ाएं। चेंज हुई डॉक्टर? नहीं नहीं, वही स्लाइड दिख रही है सर। अच्छा जी जी, चेंज कर लीजिए। डॉक्टर साहब चेंज हुआ कुछ नहीं? नहीं सर, अभी भी वही स्लाइड दिख रही है। लेकिन यार मेरा तो बढ़ रहा है, तो नेटवर्क की समस्या तो नहीं है? बढ़िया फर्स्ट क्लास आ रहा है। कोई नहीं, आप जारी रखिए, आप जारी रखिए। हाँ देख, ये केवल वो डायलेशन वाली स्लाइड दिख रही है, इसका मतलब है? हाँ, पहली वाली जिसमें आपका ये कॉपर जिंक और ये कैल्शियम सेलेनियम ईटीसी, बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी बढ़ा दिया आपने, बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी आ गई है। अरे तो बीच में जो सेल्स इतनी सारी आई थी वो नहीं आई कुछ? हाँ, वो नहीं आई सर, यही स्लाइड चल रही है। क्या चक्कर है, यहाँ तो सारा चेंज हो रहा है यार सिलेबस इसमें। इतने एंटीबॉडीज के डायग्राम मैंने दिखाया, वो कुछ नहीं दिखे? वो नहीं दिखाई दिए, तभी मैंने वो नहीं दिखाई दिए सर, तभी तो मैंने इंटरवीन किया। यार तब बढ़िया प्रेजेंटेशन था, बताओ फिर ऐसे कैसे? सर ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अटक जा रही है स्लाइड। इसको क्रॉस करके दोबारा प्रेजेंट कर दीजिए, क्रॉस करके दोबारा प्रेजेंट कर दीजिए। अच्छा, क्रॉस, एक सेकंड, बंद करके दोबारा प्रेजेंट कर दीजिए। जी जी। अब स्क्रीन सर शॉट इसमें हो गया? हाँ हाँ हाँ, अब आ गया। अब आ रही है, अब आ रही है। सर जरा अब आ बदल रही के है। जी अब बदल गया, जी अब बदल रहा है, अब बदल रहा है। अब एक बार सब बदल के देख लीजिए, आप जो आप दिखाना चाहते हैं उसको लगा दीजिए। अच्छा, क्योंकि जब आपने सेल का डायग्राम कहा ना, तो मैं काफी अपने उसमें देखता रहा, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे लगा मेरा अटक रहा है। तो हमारे यहाँ पर जितने लोगों ने ज्वाइन किया, मैंने उनसे पता किया, उनका भी अटक गया था। देखता हूँ मैं क्या हो रहा है। ब्लैंक जो स्क्रीन आ रही आप, मैं एक बार स्टॉप उप्रेती साहब स्टॉप आप बताते प्रेजेंटिंग रहिए। स्टॉप हाँ, इसको आप प्रेजेंटिंग प्रेजेंट कराऊं एक करके बार? जी जी, दोबारा प्रेजेंट कर दीजिए इसको आप। जी जी जी। है। जी। तो हैंग बहुत जल्दी होते हैं सिस्टम। डॉक्टर अतुल, जी सर। क्या आ रहा है स्क्रीन पे? सर अभी तो इसमें कुछ नहीं आ रहा हमारे। शायद मैं स्टॉप भी कर रहा हूँ तो ये स्टॉप भी क्यों नहीं हो रहा? सर मेरे ख्याल से एक बार एक, लॉग आउट होकर दोबारा हो जाए, हम्म, मैं एक बार और या तो कोशिश कुछ करता हूँ। नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसमें। इस पे पॉसिबल, हालांकि हमारे यहाँ गीगा फाइबर लगा हुआ है, इसी से कर रहा था मैं जी। ये। हाँ, सब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं ध्यान नहीं रहा आपको बताने का, मेरे पास जूम का लाइसेंस है। हम्म
हाँ, बंद कर दो। हाँ जी। हम्म। जी सर, शेयर तो कुछ नहीं हो रहा है, है। अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर स्क्रीन। अच्छा जी, एक सेकेंड। रिकॉर्डिंग। सिस्टम सर हैंग हो रहा है, मुझे लग रहा है। मैं एक बार लॉग आउट हो जाऊं। हाँ हो जाइए, लॉग आउट होकर दोबारा आ जाइए। हाँ, क्योंकि वो जो प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन है ना, वो ब्लर हो रहा है, एक्टिव ही नहीं हो रहा वो। हाँ तो आप दोबारा आ जाइए, कोई दिक्कत जी नहीं। जी जी। जी सर, अभी ये शेयर हो रहा है। हाँ, कुछ कर तो रहा है प्रोसेस। बड़ा टाइम लगा रहा है यार। हो तो रहा है डॉक्टर साहब, आप जारी रखिए। हो रहा है योर शेयर तो। प्रेजेंटिंग टू। आगे बढ़ नहीं रहा है ना सर। योर योर प्रेजेंटिंग स्टॉप। वो कहाँ आ रही है अभी? स्क्रीन नहीं आई ना? नहीं, हमारे स्क्रीन पास तो आ हमारा रही है सर, स्क्रीन आती है। ऑनलाइन सेशन आ रहा है आपका। एक सेकंड रुकिए, मैं मोबाइल से करके देखता हूँ जरा। ये बिल्कुल सर।
डॉक्टर साहब आदर्श पांडे सर, शायद वो है। जी सर, जी सर। मैंने आपको व्हाट्सएप किया था अपना, देखा था क्या? हाँ, आपने व्हाट्सएप किया है। क्योंकि यहाँ से तो सफल था, एक बार और कोशिश करके देख लेता हूँ मैं। सर एक बार आप ही शेयर करके देख लीजिए पांडे सर। हाँ मैं खोल रहा हूँ। अरे असल में आपने पीपीटी भेजा है ना मेरे मोबाइल पे। हेलो। अरे आपके सामने तो ओपन है ना वो। हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेंद्र। उनकी अब आवाज भी नहीं आ रही। हेलो। मैंने उसे लड़के को भेजा है, वो भेज दिया इनका पीपीटी। अब वो अभी शेयर अच्छा। कर रहा है, हो सकता है कि वो शेयर कर दे। देखता हूँ। नहीं तो मैं आप कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई जरूरी नहीं। हाँ जी। आप जो आपको तो दिखाई दे रहा है ना आपके सामने स्लाइड हाँ, पे। मुझे कोई समस्या नहीं। हाँ हाँ, बस बस, तो मैं आप मैं, अपना मैं, जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैं शेयर हो बढ़ाता रहा है, ये शेयर हो रहा है, चेंज भी हो रहा है, चेंज भी हो रहा है। हाँ, ये स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी आ गया। सही है, सही है, सही है। आप ही कर रहे हैं? हूँ। है यार आप मेरी कर रहे हैं? ये कौन कर रहा है? क्या चेंज अब हो रहा चेंज। है? हाँ, अब चेंज हो रहा है, सही चेंज हो रहा है। प्लीज क्या कंटिन्यू। आया? क्या आया लिखा हुआ? एग्लूटिनाइजेशन हाँ 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 यार, ये तो दिखाई आ दे रहा गया। है। हाँ हाँ, दिख रहा है, अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ ठीक है, तो देखिए ये सारा मैंने। हाँ हाँ, ये आ रहा है, अब सर आ रहा मैं है। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा 5 मिनट पहले से अपना सेशन शुरू कीजिएगा, जी जहां जी पर आप जी। डायग्राम बता रहे थे एंटीबॉडी वाले। हाँ हाँ, जी सर। एंटीबॉडीज वाला डायग्राम से करिए आप। क्योंकि जी सर, बहुत ही जी अच्छा सर। आपका प्रेजेंटेशन था, वो डायग्राम जरूर हम लोगों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार। हाँ, वो बहुत अच्छा चल रहा है आपका सर, बहुत अच्छा। ये दिखाई दी डॉक्टर साहब एंटीबॉडी जी वाई जी से? जी, वाइट शर्ट दिख रही सर। यहाँ से जी। एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज। हम्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एंटीबॉडीज हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, इसीलिए हम इन्हें आईजी के नाम से जानते हैं। और ये एंटीबॉडीज जो हैं वाई की शेप में होती है, और वाई की शेप में बताया था कि इनका जो टिप है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाती है, और ये वेरिएबल होती है। जैसा एंटीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग ये सारी इसकी शेप चेंज होती रहती है। नीचे का इस जो एरिया है सारा कांस्टेंट रहता है। डॉक्टर साहब स्लाइड आगे बढ़ रही है? जी बढ़ रही है सर, बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो है ये 5 तरह की होती हैं। फिर आईजी, डी, ई, एम, ए और जी, इनके बारे में वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डिपेंड करता है कि कितने वाई की बनी हुई हैं। और याद रखने के लिए बच्चों को इसका कोड भी हमने बता दिया, दिमाग। तो सबसे बड़ी एंटीबॉडी जो है इसमें आईजीएम होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें 5 वाई होते हैं। ये मैंने फुल स्क्रीन पे नहीं किया है ना, अब शॉर्ट पे आ रहा होगा डॉक्टर अतुल? ठीक है। तो जो आईजीजी एंटीबॉडी है ये लॉन्ग लास्टिंग है, आकार में सबसे छोटी होती है, संख्या में सबसे ज्यादा होती हैं,
और ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई के अगेंस्ट काम करती हैं। IgM एंटीबॉडी सबसे बड़ी होती है और ये जहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है सबसे पहले वहीं पर पहुँचती है। IgA भी बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है, इसे सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो बॉडी के डिफरेंट सिक्रीशंस है लाइक टीयर्स, स्वेट, सलाइवा, जो मदर मिल्क है उसमें सारी एंटीबॉडी रहती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करती हैं। IgD एंटीबॉडी ये एक तरीके से मैसेंजर का काम करती है कि जब एंटीबॉडी की संख्या कम होती है तो फिर बी लिम्फोसाइट को जाके बताती है कि एंटीबॉडीज कम हो रही हैं, आप फटाफट प्लाज्मा सेल बनाइए जिससे कि प्लाज्मा सेल फर्दर एंटीबॉडीज बना सकें। IgE एंटीबॉडी जो है ये एलर्जिक रिएक्शंस में काम आती है और जो प्लाज्मा सेल हैं ये लगभग 2000 एंटीबॉडीज पर सेकंड की रफ्तार से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को पैदा करती है। अब मैं बताना चाहता हूं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपस में कैसे करती हैं। कुछ देर पहले बताया था मैंने कि इनके 3 तरीके हैं एंटीजन एंटीबॉडी के। एक तरीका कहलाता है एग्लूटिनेशन, जिसमें कि जो एंटीबॉडीज हैं बाहर से आए हुए जीवाणु कीटाणुओं को चारों तरफ से उस पर चिपक जाती हैं और उसको हार्मलेस और एक इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देती हैं। ऑप्सोनाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें एंटीबॉडी खुद एंटीजन से नहीं भिड़ती है, केवल उसको मार करती है, उसके सिर पर जाके चिपक जाती है, जिससे कि आगे से आने वाली जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, भक्षण कोशिकाएं हमारी बॉडी में जहाँ तक घूम रही हैं, वो उन्हें पहचान में आ जाता है कि ये एंटीजन है, ये कोई फॉरेन इंट्रूडर है, घुसपैठिया है, और उसको पकड़ के वो खा जाती है। तीसरा जो तरीका है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल लाइसिस। ये इस तरीके में क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल के साथ ये बताया था। डॉक्टर साहब स्लाइड आई, चेंज हुई? जी चेंज हो रही है, बढ़िया हो चेंज रही हो रही है, फर्स्ट क्लास। हाँ ठीक है। तो ये एक बहुत ही मजेदार तरीका है हमारे इम्यून सिस्टम का, जिसमें कि एक डायग्राम को आप देख रहे हैं। और मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि जब हम कहीं किसी कबीले में चले जाते हैं अननोइंगली, तो वहाँ के लोग जो ट्राइब्स है वो भाले और चाकू छुरियाँ लेकर के अटैक करने को लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्या होता है कि हमारे शरीर में जब भी कोई फॉरेन जर्म्स अंदर प्रवेश करता है तो फिर ये एग्लूटिनेशन से वो बच गया, उसका ऑप्सोनाइजेशन भी नहीं हो रहा है, तो उसको पंक्चर कर देते हैं। अब पंक्चर करने के लिए हमारे पास कोई तीर तलवार तो वहाँ पर है नहीं बॉडी सेल्स के अंदर, तो एक कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते हैं जो उसकी सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में पंक्चर कर देते हैं, होल्स बना देते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया वहाँ पर फट जाता है, जो कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। एक डायग्राम ये भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, जो क्योंकि कॉमन इन्फ्लेमेशन हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी देर सवेर होता रहता है कि हमारे कोई कांटा लगता है, चोट लगती है, या कोई हनी बी, वास्प, कीड़ा काट लेता है, तो वो एरिया जहाँ पर कि चोट या कांटा लगा है वो लाल हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, उसमें स्वेलिंग होने लगती है। उसकी पूरी एक मैकेनिज्म यहाँ पर दी हुई है। इस डायग्राम को ध्यान से अगर आपकी स्क्रीन पर आ रहा हो तो इसमें कि कांटा चुभता हुआ दिखाया है हमारी स्किन में। तो जैसे ही कांटा चुभेगा तो हमारी स्किन पंक्चर होती है और स्किन में इस कांटे के साथ ये पर्पल कलर के बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं कि ये भी प्रवेश कर जाते हैं, जो कि अभी तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हमारे इन चोट के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तुरंत त्वचा के नीचे हमारा ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी ये खास प्रकार की कोशिकाएं मास्ट सेल्स होती हैं, ये केमिकल रिलीज करती हैं हिस्टामिन, और हिस्टामिन हमेशा वेसोडाइलेटर होता है। वेसोडाइलेटर का मतलब है कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये ब्लड कैपिलरी है, और जैसे ही हिस्टामिन के मॉलिक्यूल इस ब्लड कैपिलरी की दीवारों पर पड़ते हैं तो कैपिलरी की दीवारें चौड़ी हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। इस डायलेशन से ये होता है कि अभी तक जो सेल्स ब्लड की हमारी कैपिलरीज में ही बह रही थी, अब उनकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, जिससे कि कुछ WBC बाहर आ जाते हैं, और ये फेगोसाइटिक WBC बाहर आकर के टिश्यूज के बीच में उपस्थित जो माइक्रोब्स हैं उनको फेगोसाइट कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल तरीका रहता है कि जहाँ पर भी हमारे चोट, कांटा या कोई इंसेक्ट बाइट होती है तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, एक खास मैकेनिज्म के तहत हमारा इम्यून सिस्टम इसको न्यूट्रलाइज करता है।
तो ये एंटीबॉडी सॉरी इम्यूनिटी की बात हो रही थी, जिसमें कि बताया मैंने दो तरह की इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो कंपोनेंट आपको बताए गए थे, AMI और CMI। AMI को मैंने बता दिया एंटीबॉडी के द्वारा होती है। अब जरा CMI की बात कर लेते हैं। CMI का मतलब सेल मीडिएटेड। दो प्रकार की कोशिकाएं हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का नाम बी लिम्फोसाइट इसलिए है क्योंकि इनका मैचुरेशन बोन मैरो में होता है। हालांकि थोड़ा कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो बोन मैरो यानी बोन्स तो बहुत बाद में बनती हैं और ये बी लिम्फोसाइट बहुत पहले बन जाती हैं। तो ध्यान रखें, पहले ये यॉर्क सैक में बनती हैं, फिर लीवर में बनती हैं, फिर स्प्लीन में, और जब हड्डियां बन जाती हैं तब फिर बोन मैरो में बनती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल खास तौर पर एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए डिप्यूट होती हैं, और मेमोरी सेल्स जो हैं ये किसी भी जो एनकाउंटर हमारे शरीर में होता है किसी जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस का, उसको याद रखती हैं कि 4 महीने पहले टीबी का बैक्टीरिया आया था, या ये वायरस आया था, या ये फंगस आया था, वगैरह वगैरह। जो दूसरी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं इनका मैच्योरेशन थाइमस में होता है और इसीलिए इनको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। थाइमस एक ग्लैंड है जो हमारा हार्ट के पीछे होती है, एग्जैक्टली चेस्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हालांकि ये टेम्परेरी है, उम्र के साथ साथ थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट होती चली जाती है, लेकिन यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। जब भी टी लिम्फोसाइट या थाइमस को पढ़ता हूँ तो मुझे बिल्कुल अपनी आर्मी के वो सारे सॉरी चीज़ें याद आती हैं, जिसमें कि वो जो मिलिट्री एकेडमी के स्कूल्स होते हैं देहरादून या और, जहाँ पर सारे रंगरूट को, अपने जवानों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सारे वेपन्स चलाने सिखाए जाते हैं, युद्ध की सारी रणनीतियाँ सिखाई जाती हैं, और जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो पासिंग परेड के बाद फिर उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह होती है कि कोई लद्दाख में जाएगा, कोई जम्मू कश्मीर में जाएगा, कोई असम में जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही जो हमारी थाइमस ग्लैंड है ये लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ पर लिम्फोसाइट्स को ट्रेंड किया जाता है, और जब वो लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो जाती हैं, ट्रेंड हो जाती हैं, उसके बाद उन टी लिम्फोसाइट को अलग अलग जगह पोस्टिंग बॉडी में दे दी जाती है। बॉडी में हमारे छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे आर्म पिट में होते हैं, ग्रोइंस में, जांघों में होते हैं, गर्दन में आपने टॉन्सिल्स पड़े हुए हैं, इंटेस्टाइन की दीवारों में होते हैं। तो जगह जगह सारी पोस्टिंग होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं। फिर वहाँ पर इन टी लिम्फोसाइट्स को डिप्यूट कर दिया जाता है कि भाई लड़ाई तो हमने सिखा दी है, लेकिन जीवाणुओं कीटाणुओं से लड़ने के लिए अलग अलग जो बॉडी में हमारी चौकियाँ हैं, पोस्ट हैं, उन पर उनको तैनात किया जाता है टी लिम्फोसाइट को। नॉर्मल टी लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन करीब 4-5 साल होता है, हालांकि किसी से भिड़ गई तो कुछ पता भी नहीं है। टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी की बहुत ही गजब सेल्स हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे कैसे काम करती हैं। जो टी लिम्फोसाइट है, काम के हिसाब से 4 तरह की हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं। एक कहलाती हैं HT सेल्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ये जैसे कि नाम से लग रहा है इनको कि दीज हेल्प बी सेल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्प करती है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। आपको याद रखना है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो एड्स का वायरस है HIV, वो इन्हीं सेल्स में मल्टीप्लाई करता है, इन्हीं सेल्स को कम करता है धीरे धीरे करके। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो HIV वायरस है वो हमारे इम्यून सिस्टम की बहुत महत्वपूर्ण सेल्स को टारगेट करता है, क्योंकि इसी से एंटीबॉडीज बननी होती है। दूसरी टी लिम्फोसाइट कहलाती हैं सप्रेसर सेल्स या ST सेल्स भी कहते हैं इनको। होता क्या है कि जब कोई जीवाणु कीटाणु हमारे शरीर में जाता है, यानी हमारी बॉडी इन्फ्लेम्ड होती है, इन्फेक्ट होती है, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो ठीक होने के बाद इसका मतलब यह है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ था तो उसको हम अब सप्रेस भी कर दें, नॉर्मल कर दें कि भाई अब शांत हो जाओ, इट्स ओके। तो उसके लिए ST सेल्स होती है। ये जो किलर टी लिम्फोसाइट है ये सीधे जो जर्म्स हैं, वायरसेस हैं, उनको किल करती हैं, जैसे कैंसर सेल्स को भी किल किया जाता है। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का यानी CMI का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। टी लिम्फोसाइट में भी मेमोरी सेल्स होती हैं, सो दीज सेल्स मेमोराइज द एनकाउंटर्स।
तो टी लिम्फोसाइट्स का, जैसे कि मैंने बताया आपको, कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम में। एक नज़र इस पर भी ले लेते हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पर। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि जब हमारा शरीर किसी जीवाणु कीटाणु के अगेंस्ट खुद एंटीबॉडीज बनाता है, तो हम कहते हैं कि ये जो इम्यूनिटी हमने पाई है ये कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी। तो दिस इम्यूनिटी विच डेवलप स्लोली बट इट इज लॉन्ग लास्टिंग, ये लंबे समय तक रहती है। दूसरी कहलाती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि कुछ जर्म्स, टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जब वो हमारी बॉडी में जाते हैं एंटीजन की तरह, तो वो इतने पावरफुल हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को मौका ही नहीं देते कि वो एंटीबॉडीज बना पाए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि फिर इस तरह के एंटीजेंस को मार गिराने के लिए हम रेडीमेड एंटीबॉडीज तैयार रखें। रेडीमेड एंटीबॉडी, तो जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज के द्वारा अपनी इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं तो कहलाते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी। जैसे मान लो स्नेक बाइट है, जो कोबरा, क्रैत है, इनके जहर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि 4-5 मिनट से लेकर के आधा घंटे में जान ले सकते हैं। जितनी देर में इम्यून सिस्टम को पता पड़ेगा उतनी देर में तो पर्सन निपट लेगा। या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे कि टेटनस का बैक्टीरिया है, उससे जो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को ब्लॉक कर देते हैं, और देखते ही देखते आधा घंटे के अंदर ही हमारे नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों का कनेक्शन खत्म हो जाता है, और जो बंदा जिस स्टेट में है उसी में रह जाता है। तो ऐसे में, यानी स्नेक बाइट है या टेटनस है, इन सब में हमें रेडीमेड एंटीबॉडी लेनी होती है। तो रेडीमेड एंटीबॉडीज को हम एक तरीके से वैक्सीन कहते हैं, या स्नेक बाइट है तो स्नेक के खिलाफ हम एंटी वेनम लेते हैं। तो वो एंटी वेनम या जो वैक्सीन है वो कुछ और नहीं है, वो रेडीली प्रोड्यूस्ड ऑलरेडी वो है एंटीबॉडी है, जिसको कि हम समय आने पर किसी पर्सन को इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्शन के रूप में या किसी रूप में। तो ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आप ध्यान रखें। बॉन बेयरिंग को फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। उन्होंने 1 साल की छोटी बच्ची को ठीक किया था, और उसके ब्लड को निकाल के बकरी में डाला था, और बकरी के ब्लड में फिर उन्होंने एंटीबॉडीज को बनवाया, और फिर उसके सीरम को बच्ची में चढ़ाया था, तो वो लड़की को ठीक कर लिया था। तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। एक दौर था, जैसे आजकल कोविड चल रहा है, ऐसे में ही एक टाइम ऐसा था पूरे दुनिया भर में, ये पॉक्स की पेंडेमिक थी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स की बीमारी फैल रही थी, वायरस का बहुत खतरनाक था। तो वहाँ पर एडवर्ड जेनर ने देखा कि एक गांव में, जहाँ पर सारे लोगों को ये काउ पॉक्स हो रखा है, चेचक निकली हुई है, लेकिन एक आदमी को नहीं निकली हुई है, वो दूरिया था, उसको नहीं निकल रही थी। तो उसको उन्होंने सब जांचा परखा, तो समझ में आया कि नहीं, इसको पहले क्या हो चुका था, स्मॉल पॉक्स हो के चुका था, और इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गए उस वायरस के खिलाफ, इसीलिए इसे नहीं हुआ। तब उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, कुछ तरीका ऐसा हो सकता है कि हम किसी पर्सन को इम्यून कर सकते हैं अगेंस्ट द डिजीज। और वहीं से फिर वैक्सीन्स की खोज हुई, और जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की थी वो एडवर्ड जेनर नहीं की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन को बस आप ऐसे ही समझ लें कि वैसे तो प्राकृतिक रूप से जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में जाता है तो नेचुरली फिर हम अपने हिसाब से एंटीबॉडी डेवलप करते हैं, लेकिन काश ऐसा हो जाए कि हम इंतजार ही ना करें कि कोई एंटीजन हमारे शरीर में आएगा तब हम एंटीबॉडी बनाएंगे। तो हमने क्या किया कि कुछ बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन बना ली, और वैक्सीन बेसिकली पुराने ज़माने में क्या होता था कि वो उसी बीमारी के जर्म्स है जिसकी की वैक्सीन है, लेकिन वो हाफ डेड जर्म्स होते हैं। हाफ डेड का मतलब वो इतने मरे हुए होते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी पैदा ना करें, लेकिन इतने जिंदा भी हैं कि वो हमारे शरीर में एंटीजन की तरह रीड हो। तो जब वो हाफ डेड जर्म्स को हम अपने ब्लड में, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो हमारा शरीर धीरे धीरे करके उसके खिलाफ बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाने लगता है, और फिर वो उसकी मेमोरी सेल्स बन के तैयार हो जाती हैं। फिर सच में कभी कोई एनकाउंटर होता है कि वो उस बीमारी का पैथोजन आने की कोशिश करता है, तो इट विल नॉट मल्टीप्लाई, क्योंकि उसके खिलाफ हमने पहले से क्या बना लिया,
एंटीबॉडीज बनानी, तब हम कहते हैं कि हम उस बीमारी के अगेंस्ट क्या हो गए, इम्यून हो गए। तो जो जितने भी टीके लगाए जाते हैं, तो टीके का मतलब है वैक्सीन, और वैक्सीन का मतलब है वो हाफ डेड जर्म्स या उनकी सरफेस प्रोटीन्स होती हैं, और हमने एडवांस कहीं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज को बना के रखा हुआ है, इम्यून इस तरह हो जाती है। एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी भी एक इम्यून सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें कि एलर्जी को मतलब हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है कि कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम कुछ खास विशेष चीज़ों के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है। 100 एंटीबॉडीज बनाने थे, बना डाले 10 लाख, तो ऐसे में समस्या हो जाती है। तो कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति को इस चीज़ से एलर्जी है। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, द पॉलन ग्रेन्स, माइट्स, डस्ट, फाइबर, केमिकल, कुछ भी चीज़ एलर्जी कर सकती है, और वो कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है। जो एंटीबॉडी जिसमें आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, वो IgE हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी की बात है। एक बात और मैं छोटी सी यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं, उसमें छींक आती है, आंखों में पानी आता है, नाक बहती है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में बहुत सारा केमिकल रिलीज हुआ होता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन वगैरह केमिकल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से छींक जो होती है, छींक के तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये छींक एलर्जी की है या फ्लू की है, कोल्ड की है, कोविड-19 की है। एलर्जी की जो छींक होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। शॉर्ट स्नीज का मतलब है कि फट से आदमी छींक देता है, और लगातार 5, 6, 8 आएंगी, है ना। जबकि जो फ्लू की या वायरस वाले इन्फ्लुएंजा की जो छींक होती है वो लॉन्ग होती है। आदमी उसमें पहले माहौल बनाता है, सूरज की तरफ देखता है, और फिर लंबी गहरी सांस लेने के बाद छींकता है। वो छींक जो है, समझ जाओ तब आप किसी फ्लू से, वायरस से संक्रमित है। और ये ऐसे छोटी सी बात जहाँ पर एलर्जी बॉडी में अलग अलग जगह हो सकती है। त्वचा में एलर्जी होती है तो उसे अर्टिकेरिया कहते हैं। डॉक्टर अतुल, क्या मेरी ये स्क्रीन शेयर हो रही है इस समय? बिल्कुल हो रही है सर, बहुत अच्छी। ओके ओके ओके। तो ये स्किन की अगर एलर्जी होती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बच्चे बड़ों में पिथी जिसको कहते हैं, वो अर्टिकेरिया कहलाती है। अस्थमा भी एक एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी जो सांस की नलियां हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस को निकालने में तकलीफ होती है। जो नेबुलाइजर्स दिए जाते हैं अस्थमा के, जो पाइप से हम खींचते हैं, वो बेसिकली एंटी हिस्टामिन होते हैं, जो कि इसको डायलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। राइनाइटिस में जो हमारे नेजल चैम्बर्स हैं उनमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है। बहुत सारे लोगों को डिफरेंट जो सेंट हैं, फूलों को सूंघने से एलर्जी होती है। तो ये राइनाइटिस भी एक तरीके से एलर्जिक रिएक्शन है। एनाफिलेक्सिस, ये कहते हैं ना कि वो ये दवा हमें सूट नहीं करती, ये किसी को पेनिसिलिन सूट नहीं करता, या दवा रिएक्शन कर गई, तो वो दवा रिएक्शन करने का मतलब है कि ये आपको एनाफिलेक्सिस हो गई है, एंड इट इज एलर्जी ऑफ ब्लड एंड मे डेवलप ड्यू टू द डिफरेंट ड्रग्स, जैसे कि पेनिसिलिन हर व्यक्ति को सूट नहीं करता। इम्यून सिस्टम के बीमारियों में ध्यान रखें, ये एक रूमेटाइडल आर्थराइटिस होती है, जो एक तरीके का गठिया होता है, जिसमें हमारे जो जोड़ हैं उनमें साइनो मेम्ब्रेन होती है जॉइंट पर, वो मोटी हो जाती है और उसमें द्रव कम निकलता है, तो जोड़ों के चटकने की आवाज आती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में लीवर हमारा डैमेज होने लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम। हाशिमोटो डिजीज आपने पहले से पढ़ी हुई होती है, इसे सुसाइड ऑफ थायराइड कहते हैं, क्योंकि हमारी ही एंटीबॉडीज हमारी ही थायराइड को, अपनी ही थायराइड को बाहरी ऑर्गन मान लेती हैं और खुद उसको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। क्रॉनिक एनीमिया के केस आपने अक्सर टीवी और इन पर सब शोज में आते हैं कि बच्चे को एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे खून चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसमें ये क्रॉनिक एनीमिया की शिकायत रहती है। उसी का इम्यून सिस्टम उसी की आरबीसी को खत्म करने लगता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जो न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल के बाहर एक जो माइलिन शीथ होती है वो डैमेज होने लगती है। तो हमारी न्यूरॉन्स आपस में, क्योंकि वो इंसुलेशन का काम कर रही थी, तो फिर ये शॉर्ट सर्किट होने लगेगा न्यूरॉन्स में, है ना। इंफॉर्मेशंस कहीं की कहीं पहुंचती हैं,
तो ये एक अलग ही तरीके का डिसऑर्डर इसमें होता है कि आदमी करना कुछ चाहता है और होता कुछ और है, क्योंकि सारा नर्वस सिस्टम आपस में मिसमैनेज हो जाता है। माइस्थीनिया ग्रेविस में ये धीरे धीरे करके हमारी मांसपेशियां डिजेनरेट होने लगती हैं, और ये भी बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, लाखों करोड़ों में से किसी को एक होती है, और लेकिन है ये भी इम्यून सिस्टम की ये भी लाइलाज बीमारी है। SCID को हम कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये बहुत खतरनाक स्टेज होती है। इसमें ना तो हमारी बॉडी में भरपूर मात्रा में बी लिम्फोसाइट बनती हैं, ना ही टी लिम्फोसाइट बनती हैं। तो धीरे धीरे करके पर्सन का सारा इम्यून सिस्टम बैठ जाता है, और अपॉर्चुनिस्टिक बीमारियों की वजह से ये समस्या आने लगती है। अतुल सर, मेरे पास कितना समय और है? मैं समराइज कर दूं क्या? कंक्लूड कर हेलो? दीजिए सर। हाँ, चूंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, सर। अभी आधा ही हुआ है, तो मैं नहीं सर, ज्यादा समय हो रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन सेशन होना है अभी। जी, मुझे खुद ही लग रहा है। तो ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जहाँ जहाँ सारे डिफरेंट लिम्फोइड ऑर्गन्स फैले रहते हैं, और इनको मैं सारा स्किप कर देता हूँ, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो फिर कभी पढ़ेंगे, जिसमें कि ये स्लाइड आपको दिख रही है यहाँ से, बूस्टिंग द इम्यूनिटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ आयुष ने बताया था कि किन चीज़ों का हम ध्यान रखें। एक नज़र केवल मैं डलवा दे रहा हूँ, कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कि कुछ 27 चीज़ें जो हैं, विटामिन सी इसका खूब चल रहा है, एनफ नींद लें आप, हल्दी का इस्तेमाल करें, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करें, ज़्यादा पानी पिएं, योगा मेडिटेशन करें, होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि इनमें हर्ब्स के एसेंशियल ऑयल होते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। मॉडरेट एक्सरसाइज और होल प्लांट फूड खाएं, जो ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें हम छिलके उतार देते हैं, जबकि उनमें बहुत सारे मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। विटामिन ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दही में बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके यूजफुल फ्लोरा बनाते हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत सारे अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जरूर इस्तेमाल करें। गार्लिक को पता ही है आपको कि ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग फूड्स का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये बी लिम्फोसाइट्स को बूस्ट अप करता है। सनबाथ से हमारी स्किन में विटामिन डी बनता है, और इससे बहुत सारे जर्म्स भी मर जाते हैं। टॉक्सिन से दूर रहें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, हरा धनिया, पुदीना, तुलसी और भी जैसे जो हमारे कॉमन हर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल करें। अपने हाथों को धोते रहें, यदा कदा आप नेजल स्टीम लें, तो सर्कुलेशन बढ़ाएगा। सीजनल और लोकल फ्रूट्स जरूर खाएं। अपने भोजन में खूब सारे कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके कलर्स के हिसाब से ही सारे इसमें पिगमेंट्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन B12 जो कि न्यूरॉन्स और ब्लड के बनने के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपकी भोजन में भरपूर मात्रा में जाए। गेम खेलें, बच्चे बने रहें, ऐसे ऐसे कुछ। लिम्फेटिक सिस्टम का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी का सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है और बहुत बहुत अहम है। कॉपर में अपनी प्रॉपर्टीज हैं, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट हैं, का इस्तेमाल करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खास तौर पर ध्यान रखें, अगर नहीं है तो आप सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द गिविंग मी टाइम एंड पेशेंस। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। Thank you very much, sir, for delivering an informative and valuable lecture. Sir has very well explained about the role of antigen and antibodies in very easy and effective way. This lecture will be very helpful for students. Once again, thank you very much, sir. थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके समय के लिए। और मुझे उम्मीद है जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं उन सबको लेक्चर से बहुत लाभ मिलेगा, और से इसलिए भी क्योंकि ये इम्यून सिस्टम इन लोगों के सिलेबस का भी एक हिस्सा है। तो हाँ, मैं इसका पावर पॉइंट आपको शेयर कर दूंगा, डॉक्टर पांडे पर है ही है, बच्चों को आप इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू सर, थैंक चलो थैंक यू। अगर किसी को कुछ
प्रश्न हाँ जी। पूछने हो Thank you, तो sir. आप लोग पूछ सकते हैं। Sir, myself, Dr. Neelam Manola from Department of Botany. राजेंद्र सर, अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो। जी सुन रहा हूँ नीलम मैडम, जी प्लीज। सर, आपके अभी प्रेजेंटेशन में मैंने एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखा. Actually, जी। my niece is suffering from optical neuritis, and ओह, the cause behind this is multiple sclerosis. मल्टीपल या जी। लेफ्ट आई में उसका प्रॉब्लम है और हाँ जी। रीअकरेंस उसका बार बार हो रहा है. तो मैं ये जानना जी चाह रही थी बहुत। कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है, इज इट जेनेटिक और जस्ट ना, नो, जेनेटिक नहीं है। कोई भी जो ये अपना इम्यून डिसऑर्डर है, इनका कोई जेनेटिक कनेक्शंस जहाँ तक मुझे पता है ऐसा नहीं होता है। और इम्यून सिस्टम अपने आप में बिल्कुल वैसे ही है जैसे नर्वस सिस्टम में बहुत सारी अभी अनसुलझी पहेलियां अवेलेबल हैं, हम ब्रेन को बहुत कम जानते हैं। ऐसे ही जो इम्यून सिस्टम का बिहेवियर है सेल्स का आपस में, और डिफरेंट केमिकल्स के प्रति रेस्पॉन्स है, डिफरेंट एंटीजेंस के प्रति रेस्पॉन्स है, अभी भी रिसर्चेज आर गोइंग ऑन। बहुत कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं इम्यून सिस्टम के, उन पर भी बहुत काम होना बाकी है। ऐसे ही इसमें से एक ये भी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें बॉडी के किसी भी ऑर्गन में किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे कि आपने एक केस अपना बताया कि हाँ, वो उसकी लेफ्ट आई में है और जी माइलिन जी जो है वो निकल गया. जैसे वायर में से अगर हम थोड़ा थोड़ा रबर जो वही बाहर वही वही कोटिंग होती बिल्कुल है वो निकाल एग्जैक्टली। देते हैं. हाँ, वही. ये और उसका जो ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि 3 बार अटैक हो चुका है इस चीज का. जी, एक्चुअली ये जो न्यूरॉन्स है ना, उस पर माइलिन शीथ लगी हुई होती है, ये वास्तव में इंसुलेशन का ही काम करती है। भी 2 तार अगर जा रहे हैं हमारे पास बराबर में, तो हमने कोटिंग की हुई है जिससे कि डिस्टर्ब ना हो। अलग अलग न्यूरॉन्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन जा रही है ना, देखने की अलग जा रही है। मैं एक गिलास को उठाना चाहता हूँ, कमांड मैंने ये दिया, लेकिन कहीं और भी इंफॉर्मेशन चल रही होती है, तो वो इंफॉर्मेशन सारी मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। हाँ, जी। सब जो न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स है. एक्चुअली आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम सीटीएस इन माय राइट हैंड. ओके। काफी लंबे समय से मुझे भी थोड़ा होल्ड करने में चीजों को काफी दिक्कत आती है. होती है। या और मेरे ख्याल से ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी मुझे लगता है ये, कि जब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आप आज करवाइए, स्पेशली जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इसमें आ सकती है, क्योंकि वो न्यूरोजेनिक विटामिन है। अगर नंबनेस पकड़ने में रहता है तो थोड़ा सा किसी डॉक्टर की सलाह से आप ये बात कर सकते हैं कि सप्लीमेंट इसका विटामिन। नॉनवेज खाती है नहीं आप? सर, या हार्डकोर क्योंकि विटामिन B12 जो है, ये एक ऐसा विटामिन है कि किसी प्लांट उस पर नहीं बनता, ना प्लांट बनाते ना एनिमल बनाते हैं। एनिमल्स में भी जो है वो माइक्रोब्स बनाते हैं, जैसे हम लोगों में बैक्टीरिया बनाते हैं, या फिर जहाँ पर भी आया हुआ है। तो इसलिए चीजें जो है नॉनवेज डाइट में थोड़ा ज्यादा होता है। खैर ध्यान रखिए। हाँ सर, आपका जो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत हेल्पफुल भी रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, और इन्फॉर्मेटिव बहुत था, और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में हम सभी लोगों ने सुना है. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद. थैंक यू. और कोई स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, वरना हम सर का काफी टाइम ले चुके हैं, और सर को मैं धन्यवाद कहना बीच में चाहूंगा. टाइम थोड़ा वेस्ट ज्यादा हो गया. ये टेक्नोलॉजी में इसमें यही समस्या है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है. सर वो थोड़ा जी बताइए, कोई बात नहीं. ठीक से मुझे लग नहीं रहा है कोई क्वेश्चन ज्यादा है इस समय. बच्चों के लिए एकदम नया टॉपिक है. मेरे ख्याल से जब आपकी पीपीटी हम शेयर करेंगे उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन आएंगे. हाँ बिल्कुल, ऑलवेज वेलकम है ना. जी सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बहुत ही शानदार लेक्चर रहा, और मैं ये दावा करता हूँ कि मैंने आपके श्री मुख से जितनी बार भी लेक्चर सुने हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, लेकिन आज वाकई आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेक्चर दिया. मेरी दिली शुभकामनाएं सर आपके लिए. बहुत 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 साधुवाद, धन्यवाद. Thank you so much for delivering such a nice and you explained it beautifully, excellently. Thank you, sir. Thank you, sir. Salute. Thank you. Salute. Okay.